سینئر صحافی تجزیہ اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ صاحب. شاہزیب، آج کی انتہائی یہ اہم ڈیٹیل، صدر عارف الوی نے آفیشیل سیکرٹ ترمیم بل پر دستخط کی تردید کی، اور اب جو بات سامنے آ رہی ہے آرٹیکل 75 کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور وزارت قانون اور انصاف بھی کہہ رہا ہے کہ آرٹیکل 75 کوئی تیسرا آپشن فراہم نہیں کرتا. دیکھیے جی، ظاہر ہے آئین اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے، اور جو صدر پاکستان کی ٹویٹ ہے اس نے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، سوالات پیدا کر دیے ہیں. اب آئین کے تحت تو بڑا کلیئر ہے کہ صدر صاحب یا تو 10 دن میں اس کو واپس کریں یا پھر منظور کریں. 10 دن میں واپس کریں تو اس کے بعد اپنے آبجیکشنز کے ساتھ واپس کریں کہ کون سی ترامیم ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے. تو صدر پاکستان کے پاس ریکارڈ ہوگا کیا انہوں نے اپنے سٹاف کے ساتھ صرف وربل کمیونیکیشن کی تھی، بات کی تھی صرف، یا پھر لکھ کے اعتراضات کیے تھے اور اعتراضات کے ساتھ واپس بھجوایا تھا. کیونکہ اگر اعتراضات کے ساتھ واپس نہیں بھجوایا تھا اور اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو پھر کیسے ثابت کیا جائے گا کہ صدر مملکت نے بار بار اپنے سٹاف سے کہا اور بار بار بھی پوچھا اور سٹاف نے ان کو بار بار کہا اور مس گائیڈ کیا. یہ تحقیق طلب معاملہ ہے. جو لوگ صدر پاکستان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، میں کم از کم اس وقت اس بات سے متفق نہیں ہوں جب تک کہ یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ کیا صدر مملکت غلط بیانی کر رہے ہیں یا پھر ان کے ساتھ ان کے سٹاف نے غلط بیانی کی ہے. اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ لازمی ہے کہ آفیشیل ریکارڈ دیکھا جائے، صدر مملکت خود ایویڈنس سامنے لے کر آئیں کہ جی یہ میں نے اعتراضات بل پر لگائے تھے اور یہ اعتراضات ریٹن میں اپنے سٹاف کو بتائے تھے، اور اس کے باوجود میرے سٹاف نے میرا حکم نہیں مانا، حالانکہ وہ میرے حکم کو ماننے کا یا میری ہدایات کو ماننے کا پابند تھا قانون اور آئین کے مطابق. تو اگر صرف وربل کمیونیکیشن کی تھی اور الفاظ میں صدر نے بتایا تھا تو معذرت کے ساتھ پھر اس کا کہ وہ کیسے صدر مملکت ثابت کر پائیں گے. اور ایک مسئلہ ان کے ٹویٹ میں یہ ہے کہ وہ معذرت کر رہے ہیں، لوگوں سے معذرت کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ خود ازیوم کر رہے ہیں کہ میرے اسٹاف نے مجھ سے غلط بیانی کی، اس لیے اب یہ قانون تو بن گیا ہے، اس لیے جو اس سے متاثر ہوگا میں ان سے معذرت کرتا ہوں. اگر صدر مملکت نے سائن نہیں کیے تھے تو آئین کے مطابق تو وہ 10 دن میں یا تو سائن کر کے منظور کر لیتے یا پھر اعتراضات کے ساتھ واپس بھیج دیتے. جب اعتراضات کے ساتھ واپس بھیجتے تو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوتا، اگر وہ اس کو منظور کرتا تو پھر اگر صدر مملکت مقررہ مدت میں اسے واپس نہ بھیجتے یا تو وہ قانون بن جاتا. اگر دوسری دفعہ معذرت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو آئین میں اس حوالے سے جو پہلی دفعہ صدر مملکت کا ہے وہ تو دو ہی آپشن دیتا ہے صدر مملکت کو، یا تو وہ سائن کر دیں گے یا پھر اپنے آبجیکشنز کے ساتھ واپس کر دیں گے. اگر انہوں نے دونوں میں سے کوئی کام نہیں کیا تھا تو یہ لا کیسے بنے گا، اس پر آئین خاموش ہے. مگر صدر مملکت تو اپنی ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں اور یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ تو قانون بن گیا ہے، اس لیے اس سے جو متاثر ہوں گے میں ان سے معذرت کرتا ہوں. تو صدر مملکت یہ راستہ بھی کھول رہے ہیں اپنی ٹویٹ میں کہ بھائی قانون تو یہ بن گیا ہے، بجائے اس کے کہ اس بات کو چیلنج کریں کہ جی یہ قانون نہیں بنا ہے کیونکہ میں نے اس پر دستخط نہیں کیے تھے، میں نے آبجیکشنز کے ساتھ واپس بھجوایا تھا مگر میرے سٹاف نے اس کو واپس نہیں بھیجا تھا، اور یہ اس کا ایویڈنس موجود ہے کہ میں نے یہ آبجیکشنز لگائے تھے، اس لیے یہ قانون ایگزسٹ نہیں کرتا. صدر مملکت تو دونوں باتیں کر رہے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میرے سٹاف نے میرے ساتھ غلط بیانی کی حالانکہ میں نے انہیں منع کیا تھا، مگر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون بن گیا ہے، اس لیے اس قانون سے جو متاثر ہوں گے میں ان سے معذرت کرتا ہوں. تو جو دونوں پوزیشن صدر مملکت لینا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے. جو لوگ صدر سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ انہیں بھی تھوڑا انتظار کرنا چاہیے. اس ملک کے صدر ہیں اور صدر مملکت پاکستان کا سب سے ٹاپ عہدہ ہے، تو بجائے اس کے کہ ان سے فوری طور پر استعفیٰ مانگا جائے، اہم یہ ہے کہ اس بات کی تحقیق ہو کہ کیا واقعی اس ملک کے صدر مملکت کے جو احکامات تھے ان کی پاسداری نہیں کی گئی ہے، اور پاسداری نہ کرتے ہوئے ان کے اسٹاف نے یہ سارا کا سارا کام کیا ہے. کیونکہ اس کے بعد صدر مملکت کا استعفیٰ نہیں بلکہ اسٹاف کے خلاف کارروائی بنتی ہے. مگر اس کے لیے بہت زیادہ لازمی ہے کہ صدر مملکت وہ ساری کی ساری ایویڈنس فراہم کریں کہ میں نے اس تاریخ کو اپنے اسٹاف کو یہ کمیونیکیشن کی تھی، میں نے اس بل کے اوپر ریٹن میں یہ آبجیکشنز لگائے تھے، اس کے باوجود میرے اسٹاف نے اس بل کو ریٹرن نہیں کیا. کیونکہ اگر پہلی دفعہ ریٹرن نہیں کیا تو آئین کوئی بہت واضح بات نہیں کرتا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ میں تو دو ہی آپشن صدر مملکت کے پاس ہیں، یا تو وہ سائن کریں گے یا پھر آبجیکشنز کے ساتھ واپس کریں گے. مگر سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ صدر مملکت پہلی دفعہ میں یہ ازیوم کیے بیٹھے ہیں کہ جی کیونکہ میرے اسٹاف نے ریٹرن نہیں کیا اور میرے احکامات کی خلاف ورزی کی اس لیے اب تو یہ قانون بن گیا، اس لیے اس سے جو متاثر ہوں گے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. تو جو دونوں راستے صدر مملکت لے رہے ہیں وہ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. شاہزیب صاحب، کل سے اب تک اس خبر کو 20 سے زائد گھنٹے ہو گئے ہیں، تو دستخط کی تردید کرنے میں یہ 20 سے زائد گھنٹے جو صدر صاحب نے لیے ہیں اس ٹائمنگ کو کیسے دیکھتے ہیں؟
देखिए जी, जाहिर है टाइमिंग पर भी सवालात उठते हैं क्योंकि ये हेडलाइंस में थी खबर और सदर मुमलिकत के ऊपर सवालात उठ रहे थे। खुद तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं वो भी सवालात उठा रहे थे कि ये कानून पास कर दिया गया है, इससे तो बराह रास्त तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुतासिर होगी। फिर हमने देखा कि जो साइफर का मामला है उसके ऊपर जब मुकदमा बनने लगे और ये साथ, तो फिर बहुत ज्यादा प्रेशर भी सदर मुमलिकत पर पड़ा। तो टाइम तो उन्होंने बहरहाल लिया है। अगर उनकी पोजीशन ये है कि मैंने टाइम इसलिए लिया क्योंकि मुझे अपनी आईनी और कानूनी टीम से मुशावरत करनी थी और उसके बाद रिस्पॉन्ड करना था, तो ये कैसी मुशावरत आईनी और कानूनी टीम से की है कि वो पहली दफा में ही बिल को रिटर्न ना करने पर और अपनी स्टाफ की तरफ से ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने रिटर्न नहीं किया इसलिए कानून बन गया, इसलिए मैं माजरत चाहता हूं। क्योंकि कानूनी टीम ने उन्हें वाज़ेह तौर पर बताया होगा कि अगर ये रिटर्न नहीं हुआ है और आपने इस पर दस्तखत भी नहीं किए हैं तो आइन में एक गुंजाइश मौजूद है। आइन इस पे साइलेंट है कि पहली दफा में आपने रिटर्न नहीं किया और साइन नहीं किए तो क्या ये कानून बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि ये तो दूसरी दफा में अप्लाई होता है कि अगर प्रेसिडेंट ने बिल वापस कर दिया है पहली दफा में तो इसको पार्लियामेंट जो है वो रिकंसिडर करेगी और रिकंसिडर करने के बाद अगर पार्लियामेंट इसको मंजूर कर लेती है तो फिर ये मामला प्रेसिडेंट के पास आएगा और उसके बाद ये ऑप्शन पैदा होता है कि जी अगर कि इसको कानून तस्वुर किया जाएगा अगर मुकर्ररा हद में मुद्दत में सदर इसको मंजूर नहीं करते हैं। पहली दफा में तो ये ऑप्शन नहीं पैदा होता है। अगर सदर मुमलिकत खबर आने के 24 घंटे बाद तक उससे भी ज्यादा अरसे तक सिर्फ अपनी कानूनी टीम से मुशावरत कर रहे थे रिस्पॉन्ड करने के लिए और उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है, तो ये सवाल पैदा हो रहा है कि उन्होंने ट्वीट करते हुए ये क्यों अज्यूम किया है कि जी अब तो ये कानून बन गया, इसलिए इससे जो मुतासिर होंगे मैं उनसे माजरत चाहता हूं। उनकी कानूनी टीम ने क्या जो आइन में गुंजाइश पैदा होती है इस बारे में उन्हें नहीं बताया, जिसके ऊपर कानूनी माहिरीन भी बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है सदर मुमलिकत ही इस बात को क्लियर कर सकते हैं। उन्हें वाज़ेह तौर पर सामने आना चाहिए कि जी मैंने पहली दफा क्योंकि इसको दस्तखत नहीं किए तो दस्तखत का एविडेंस नहीं है और एविडेंस नहीं है तो इस साथ साथ इस बात का एविडेंस मौजूद है कि मैंने किन ऑब्जेक्शंस की बुनियाद पर इसको वापस भेजने का कहा था। क्योंकि ये बहरहाल कानून ये बात कहता है कि जी सदर मुमलिकत इस पर ऑब्जेक्शन लगाकर वापस कर सकते हैं और उसका एविडेंस कहाँ है ये भी सदर मुमलिकत को देना चाहिए। सही, और अब देखना ये होगा कि अगर दस्तावेजी सबूत सामने आता है या नहीं आता फिर क्या मामला बनता है। बिल्स का कानून बनना यानी ये समझा जाए शाहजेब के आईनी तौर पर यकीनी नहीं है अभी। देखिए जी, सदर मुमलिकत अज्यूम कर रहे हैं कि ये कानून बन गया है क्योंकि आइन में काफी वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जो डीम्ड कंसेंट है कि जी के सदर मुमलिकत की कंसेंट कंसीडर की जाएगी और जो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कानून बन जाएगा। वो उस सूरत में है जब सेकंड टाइम ये मामला होगा कि अगर पार्लियामेंट ने इस बिल को रिकंसीडर किया और रिकंसीडर करने के बाद मंजूर किया और उसके बाद प्रेसिडेंट को भेजा। पहली दफा के बारे में तो ऐसा नहीं कहा गया है, पहली दफा के बारे में ये बात नहीं की गई, मगर सदर मुमलिकत खुद अपने ट्वीट में अज्यूम कर रहे हैं कि जी अब तो ये कानून बन गया, इसलिए जो इससे मुतासिर हो वो मुझे लोग माफ कर दें। तो जिसकी वजह से ये जाहिर है ये सवाल उठेगा कि अगर आपने दस्तखत नहीं किए हैं और आप कह रहे हैं कि आपने दस्तखत नहीं किए हैं और आपने अपने स्टाफ को कहा था कि वापस भेज दें, तो पार्लियामेंट तो मौजूद है नहीं जो इसको 10 दिन की मुद्दत पूरी होने के बाद और रिटर्न होने के बाद वापस एक ज्वाइंट सेशन में इसको पास करके आपके पास वापस भेजे। तो आप अज्यूम क्यों कर रहे हैं कि ये कानून बन गया है? ये एक कानूनी मामला जो पैदा हो रहा है। शाहजेब साहब, इससे पहले एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाफिज एहसान अहमद साहब से हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि कोई भी बिल जब सदर मुमलिकत के पास जाता है तो उसे दस्तखत या तस्वीर के जरिए डॉक्यूमेंट किया जाता है, यानी कि सब चीजें डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में होती हैं। तो सदर बरी जिम्मा नहीं हो सकते सिर्फ एक ट्वीट के जरिए कह के कि मैंने दस्तखत नहीं किए। ये बड़ा अहम मामला नीलम। अगर सदर मुमलिकत सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी मैंने तो अपने स्टाफ को कहा था और बाद में वो ये कहते हैं कि मैंने सिर्फ अल्फाज में कहा था, ये एक वर्बल कम्युनिकेशन थी और मेरे स्टाफ ने मुझे यही बताया था कि वापस चला गया है, मगर बाद में पता चला कि वापस नहीं गया है, तो फिर सवाल पैदा होगा। क्योंकि मैं भी कानूनी माहिरीन को सुन रहा था जो कि ट्रांसमिशन में मौजूद थे और सबकी तकरीबन यही मुत्तफिका राय थी कि जी ये सारा का सारा काम ऑफिशियल रिटन कम्युनिकेशन के जरिए होता है, तहरीरी तौर पर होता है। अगर सदर मुमलिकत साइन करेंगे तो जाहिर है तहरीर करेंगे, अगर साइन नहीं करेंगे और बिल को वापस भेजेंगे तो अपने ऑब्जेक्शंस को भी तहरीरी शक्ल में नोट करेंगे और ये कानूनी तौर पर पासदारी करें वो ये उसको कानून उनको इस बात का पाबंद करता है। मगर अगर सदर मुमलिकत ने सिर्फ वर्बली अपने स्टाफ से पूछते रहे, वर्बली उनका स्टाफ उन्हें बताता रहा और उसके बाद उन्हें 24 घंटे से ज्यादा लग गए इसका ट्वीट करने में, तो मेरा ख्याल है कि अगर ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुई तो सदर मुमलिकत के पास सबूत होंगे, महज एक ट्वीट ना करें, वो सबूत जरूर उन्हें सामने लेके आने चाहिए। सही, साथ ही रहेगा शाहजेब, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से रद्द-ए-अमल भी सामने आना शुरू हो गया है। सभी ये कह रहे हैं कि सदर को अगर ये सिचुएशन बन रही है कि ऑफिस स्टाफ आपकी बात नहीं सुन रहा तो उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये मामला अब अदालतों में जाता दिख रहा है आप, या आपको लग रहा है बात
इस्तीफे तक पहुंचेगी? देखिए जी, सदर मुमलिकत को खुद अदालत में ये मामला लेकर जाना चाहिए और अपनी पोजीशन वाजे करनी चाहिए। मैं इस बात से तो इत्तेफाक नहीं करता कि मुल्क का सदर ये बात कर रहा हो कि जी मेरी अथॉरिटी चैलेंज हुई है और मेरी अथॉरिटी को मेरे स्टाफ ने ही चैलेंज किया है, तो हम उस मुल्क के सदर से ही फौरी तौर पर इस्तीफे का मुतालबा शुरू कर दें, बजाय इसके कि इस बात की तहकीक का मुतालबा हो कि जी वाकई कहीं इस मुल्क के सदर की अथॉरिटी उसके अपने स्टाफ ने तो अंडरमाइन नहीं की है, क्योंकि उस सूरत में तो स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम सदर मुमलिकत से इस्तीफे का मुतालबा करें। मगर उससे पहले कुछ ज़ाहिर सवालात हैं जिनके जवाबात सदर मुमलिकत ने देने हैं। जैसे वजारत कानून का इस वक्त जो मौकफ आया है कि वो सदर मुमलिकत को कह रहे हैं कि उन्होंने आर्टिकल 75 के तहत अपनी जो आईनी जरूरियात है वो पूरी नहीं की हैं और सदर के पास बिल्स वापस करने का तरीका था तो अपने मुशाहिदात के साथ वापस कर देते, जैसे कि उन्होंने माजी करीब में बिल वापस भिजवाए हैं। तो ये अहम सवाल है कि अभी रिसेंटली सदर मुमलिकत ने मुताबिक बिल्स, क्योंकि जो आउटगोइंग पार्लियामेंट थी उन्होंने तो माशाल्लाह बगैर कोई जमहूरी इकदार की और आईनी इकदार की परवाह किए बगैर धड़ाधड़ बिल पास किए थे। जाते जाते बात वोट को इज्जत देने की करते थे, जमहूरियत की बालादस्ती की करते थे, मगर हमने देखा कि कैसे बुलडोज कर रहे थे। उसमें से मुताबिक बिल सदर ने वापस किए और अपने मुशाहिदात के साथ वापस किए और बाकायदा तौर पर जब वापस हुए तो मीडिया पर खबर भी लगी। अब सदर मुमलिकत ये एक बिल जो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था उसको लेकर भी बैठे रहे, 10 दिन का वक्त भी गुजर गया, फिर कल खबर आ गई, खबर आने के 24 घंटे गुजर गए, उसके बाद सदर मुमलिकत अपना बयान जारी करते हैं ट्वीट के जरिए और कहते हैं कि जी कानून तो अब बन गया है, वो अज्यूम कर रहे हैं और मैं माजरत चाहता हूं लोगों के साथ। तो सदर मुमलिकत को इस हवाले से एविडेंस देनी है कि जिस तरीके से उन्होंने माजी में बिल मुस्तरद किए या उन पर ऑब्जेक्शंस लगाए और ऑफिशियली ये सारा का सारा काम हुआ और वापस भेजे, क्या उन्होंने वही एसओपी इस बिल की सूरत में भी फॉलो किया था या नहीं किया था? 10 दिन कैसे गुजर गए? क्योंकि बाकायदा तौर पर मीडिया पर खबरें चल रही थी मुसलसल कि कौन कौन से बिल सदर मुमलिकत ने वापस भेज दिए हैं और कौन कौन से बिल सदर मुमलिकत ने वापस नहीं भेजे हैं। उसके बाद खबर चलती रही कि जी 10 दिन का वक्त हो गया और अब तो जो है वो कानून बन गया, मगर सदर मुमलिकत खामोश रहे। आज सदर मुमलिकत एक ट्वीट करते हैं तो और वो उसमें यह अज्यूम कर लेते हैं कि तो कानून बन गया है। अगर सदर मुमलिकत ने दस्तखत किए हैं तो सामने आ जाए, नहीं किए हैं तो जिस तरीके से वो पहले ऑफिशियल कम्युनिकेशन के जरिए और अपने ऑब्जेक्शन के जरिए मुख्तलिफ बिल्स को मुस्तरद करते रहे हैं, उसका एविडेंस उनको सामने लेके आना चाहिए कि उन्होंने अपने स्टाफ को मना किया था और कैसे उनके स्टाफ ने उनकी जो अथॉरिटी है उसको अंडरमाइन किया था। देखिए बड़ा मसला है सदर मुमलिकत के ट्वीट में और वो मसला बहुत बड़ा ये है जो सवालात उठा रहा है कि इस मुल्क का सदर ये अज्यूम कर रहा है, पहले ये कह रहा है कि जी मैंने अंडरमाइन कर दी मेरे जो स्टाफ ने मेरी अथॉरिटी, मगर फिर ये अज्यूम कर रहे हैं वो कि जी अब तो कानून बन गया है तो इसलिए जो जो इससे मुतासिर होगा वो मुझे माफ कर दे। ये एक अजीब सी बात नजर आती है। पहले 10 दिन गुजरे हैं, दूसरे 10 दिन नहीं गुजरे हैं, ज्वाइंट सेशन से वापस पास होकर नहीं आया है, आईन ये वाज़ेह तौर पर नहीं कह रहा है कि जी अगर 10 दिन गुजर गए सदर तो ये और सदर मुमलिकत ने कुछ भी नहीं किया तो ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा। आइन में तो पहली दफा जब पार्लियामेंट से जाता है बिल तो 2 ही ऑप्शंस लिखे हुए हैं कि या तो सदर मुमलिकत दस्तखत करेंगे या फिर दस्तखत नहीं करेंगे और कानून नहीं बनाएंगे तो अपने ऑब्जेक्शंस के साथ वापस करेंगे। और हालिया मुताबिक बिल्स उन्होंने इसी तरीके से वापस किए हैं। तो ये जो बिल्स हैं इनके ऊपर क्या हो गया कि सदर मुमलिकत को एतराज भी बहुत था, उन्होंने अपने स्टाफ को कहा भी मगर स्टाफ ने वापस भी नहीं भेजे, फिर 24 घंटे से हेडलाइंस भी चलती रही, फिर सदर मुमलिकत ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके बताते हैं कि स्टाफ ने मेरी अथॉरिटी अंडरमाइन की है मगर यह कानून बन गया है, इसलिए अब इससे जो मुतासिर होंगे मैं माजरत चाहता हूं। सदर मुमलिकत को मेरा ख्याल है कि वाज़ेह तौर पर एविडेंस देनी चाहिए कि भाई मैंने जैसे दीगर बिल मुस्तरद किए थे या उन पर ऑब्जेक्शंस लगाए थे और वापस भेजे थे, मैंने एन उसी तरीके से यही रूल्स फॉलो करते हुए, आइन और कानून को फॉलो करते हुए इस बिल पर भी ऑब्जेक्शन लगाए थे और वापस किए थे। उसका ये एविडेंस मौजूद है जो कि मुताबिकत रखता है बाकी बिलों से जो कि मैंने वापस भेजे हैं, इसलिए मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तमाम एसओपीज को, तमाम कानून को फॉलो किया मगर मेरे स्टाफ ने अंडरमाइन किया और ये उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तब स्टाफ के ऊपर सवाल उठेगा और जाहिर स्टाफ से तहकीकात होनी चाहिए सारे के सारे मामले पर। सदर साहब को बहुत कुछ है जिसकी वजाहत करनी चाहिए।